اور ہم وہ گیت گاتے ہیں زبور 85 کی جو آیت ہم گاتے ہیں سلام سے پہلے. پانی کا ڈالی بس میرا ہے میرے کو ہے. کل خدا دی سونا گا جل کرے گا کلام. میں کل خدا دی سونا گا جل کرے گا کلام کہ تشریف رکھیں. میری طرف سے آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم اس کے وعدے کے مطابق ہم اس جگہ اکٹھے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں اس کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے. اور آج جو ہم اس وقت عبادت کے اس حصہ میں ہیں کہ اس کی کلام کو سیکھیں تو میرے ساتھ مل کر نکالیں افسیوں کے نام. پالوس رسول کا خط افسیوں 2 باب. آٹھ اور 10 آئے. 8 9 اور 10 جی. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے وسیلے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی بولیں برکت ہو. آمین. برکت ہو. ہاللیلویا. آج ہم مس کر رہے ہیں اپنے پیارے بھائی پیسٹر روبن جی کو، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے تو ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند اپنے بیٹے کو پادری روبن صاحب جی کو صحت اور تندرستی دے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اسی طرح اپنے بڑے کاموں کے لیے استعمال کرتا رہے. ہم اپنے سروں کو جھکائیں. کلام کے لیے بھی ہم پھر ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اور خاص ہم پادری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. اے مہربان باپ، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند خدا کہ تو ہم پر مہربان ہے، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہم پر اپنا رحم کرتا ہے کہ ہم آج کے دن تک صحیح سلامت اور زندہ ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند گزرے ہفتے کے لیے جن دنوں میں خداوند تو نے ہماری نگہبانی کی، مدد کی، حفاظت کی، ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں محفوظ رکھا، ہمیں اچھی اچھی نعمتوں اور برکتوں سے آسودہ کیا. تیری ان اور باقی سب نعمتوں اور برکتوں کے لیے دلوں کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور خاص آج دعا کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم اپنے بھائی تیرے خادم پاسٹر روبن کو خداوند اپنے درمیان نہیں پاتے، خداوند دکھ کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، جو بھی دکھ درد ہے یسوع تو جانتا ہے اور اسی خداوند ایمان اور یقین کے ساتھ تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ تو شفا کا منبع ہے. شفا خداوند زندہ خدا تجھی سے نکلتی ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند کے آئندہ تیرا خادم، تیرا بندہ
जो किसी दुख तकलीफ की वजह से खुदावंद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, खुदावंद अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। हम ये खुदावंद दुआ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से कि तू अपने बेटे को खुदावंद मुकम्मल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। पैरों की सारी दुख दर्द यीशु तेरे कदूस नाम से दूर हो जाए, और जो भी खुदावंद बाकी मांदा कोई कमज़ोरी है खुदावंद जिंदा खुदा उसे भी अपने ज़ोर में बदल दे, ताकि तेरा बंदा तेरे नाम की गवाही देने के काबिल बने, और खुदावंद हमेशा की तरह तेरे लोगों के साथ तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को बांटे, और खुदावंद तेरा नाम और तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। मेहरबान बाप, इसी तरह तेरे कलाम के लिए भी खुदावंद जो तू अपने लोगों को आज देना चाहते हैं खुदावंद, मिन्नत करते हैं कि ये तेरा कलाम खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर काम करे, और खुदावंद हम सब के लिए बरकत का बायस बने। तेरा कलाम जो खुदावंद दिलों में बोया जाए वो 100 गुना से कम फल न लाए। यीशु तो हम सब पर अपनी मेहरबानी का हाथ बढ़ाए रखना, ताकि हम इसी तरह तेरे पीछे पीछे चलते हुए यीशु तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। मेहरबान बाप, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा है इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 8, 9 और 10 आयत। मैं एक दफ़ा फिर आप सबों की याद दहानी के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए फिर पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अगर हम देखें आखिरी आयत जो हमने पढ़ी 10वीं आयत, तो उसमें एक ख़ास मकसद है, और मकसद क्या है कि हम खुदा ने हमें किस लिए बनाया है कि हम उसके नेक कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएं। अगर हमें निजात मिली है तो वो हमारे कामों की वजह से नहीं, किस वजह से मिली है? पहली जो आज पढ़ी हमने, परमेश्वर की बख्शिश, ये खुदावंद की बख्शिश है। हमको निजात किस तरीके से मिली है, कैसे मिली है? आप ना जवाब दें, मैं बताऊंगा। सवाल में पूछ रहा हूँ, आप देखेंगे क्या जवाब है इसका, फिर ये ना हो कि गलत जवाब दे दें। हमको निजात मिली है ईमान के वसीला से, और इसके साथ क्या हुआ है? खुदावंद का फजल। अगर उसका फजल ना होता तो हम ईमान भी नहीं ला सकते थे। हमने जो ईमान यीशु पर लेके आए हैं, ये उसके फजल की वजह से है, ताकि हम ये कि मैं ईमान ले आता तो फिर निजात, वो भी निजात इस सूरत में मिली है कि हम ईमान लाए, और ईमान किस तरीके से लाए कि उसका फजल हम पर हुआ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान रखते हैं लेकिन निजात याफ्ता नहीं है, अभी फजल नहीं हुआ। चर्चेज में देखें, लोग साल हर साल अटेंड करते हैं चर्च, और एक दिन आता है कि मैं जी बपतिस्मा लेना चाहता, है ना? बैठे रहते हैं साल हर साल, गीत भी गाए जाते हैं, हर चीज़ होती है, और देखने में ऐसा ही होता है कि मसीह है मसीह है मसीह है। लेकिन एक वक्त खास आता है जिसमें इंसान कन्विक्टेड होता है कि नहीं, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। चर्च में आना, खुदा के लोगों के साथ मिलना, खुदा की हमदो सना करना, ये उस चीज़ का साइन नहीं है कि आप निजात याफ्ता हैं। निजात जब तक आप पर फजल नहीं होता, आप ईमान के बगैर, पहले ईमान लाना है और उसका फजल है, फजल पहले है फिर ईमान है। और कैसे ईमान पैदा होता है?
हम सब जानते हैं ईमान सुनने से पैदा होता है, कि एक वक्त आता है कि लोग खड़े होकर कि मैं, या अप्रोच करते हैं पादरी साहब से या उसके लोगों के साथ या डीकन्स के साथ, एल्डर के साथ, कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। कुछ ऐसे बपतिस्मे हैं चर्चेज में होते कि वो पानी का बपतिस्मा होता, फिर कई ऐसे बपतिस्मे हैं जो हम देखते हैं कि डुबकी वाला है, जो कभी इमर्जन है, पानी में गोता लेना है। तो ये वो एक गवाही है लोगों के सामने कि खुदावंद ने मुझे चुन लिया है। किस लिए चुन लिया है? आखिरी आयत में हम पढ़ते हैं कि हम खुदावंद की कारागरी हैं, हमें खुदावंद ने बनाया इसीलिए है कि उसके नेक कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। हम मसीह यीशु पर ईमान किस तरीके से लेके आते हैं? क्या उसके काम हम देखते हैं आज हमारी जिंदगियों में होते हैं, या हमने उस वक्त उसे देखा था जब वो इस दुनिया में मौजूद था? हमने तो उसे नहीं देखा। और ये ईमान ही का हिस्सा है कि खुदावंद हम पर अपना फजल करता है, वो हमारे ईमान को देखता है। हम जाहिरी तौर पे तो ईमान दिखा नहीं सकते, लेकिन अपने कामों की वजह से हमें हमारी जिंदगी से ये नजर आता है कि हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। खुदावंद मसीह ने हमें चुन लिया है, किस लिए? अपने नेक कामों को पूरा करने के लिए। अब देखिए कि नेक काम हैं क्या, और क्या वाकई हम जो मसीह अपने आप को समझते हैं कि मसीही हैं, क्या हमारी जिंदगियों से नेक काम जाहिर हो रहे हैं? आपने जब गीत शुरू किया, आपने गीत में गाया कि भी वो जैसे है ना, मुबारक है वो कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। यानी वो लोग जो खुदावंद के पीछे जाकर उसके उस काम को, जो मुनादी का काम है, जो खुशखबरी का काम है, जो निजात का काम है, उसे पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स हम धैर्य की भी देते हैं, हम खाना भी खाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, हम अच्छे काम चैरिटी के काम भी करते हैं, लेकिन ये वो काम है जो हमारी जिंदगियों से ज़ाहिरी तौर पर रूनुमा होते हैं। अब कोर्स पिछले दिनों भी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि पिछले दिनों में पादरी साहब ने अनाउंस किया कि चर्च बन रहा है तो हमें शेयर करना चाहिए उस अच्छे काम के लिए। वो अच्छा काम है, वो अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा काम ये है जब आसमान पर खुशी मनाई जाती है। क्या है वो काम? कि हम उसकी निजात को शेयर करें, और जब उसकी निजात को शेयर करेंगे और कोई ईमान लेके आएगा खुदावंद के फजल के वसीला से, तो एक जान जो है निजात पाएगी। वो है सबसे अच्छा काम। और ये उसी तरीके से हो सकता है जब हम मनादी के लिए निकलें। हम ईमानदार हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी खुशखबरी को फैलाएं। खुशखबरी यही है कि मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपनी खिदमत का काम पूरा किया, और वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, मारा गया, और फिर हमारे ईमानों को बढ़ाने के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस पर हम ईमान रखते हैं वो एश्योरेंस है, वो जिंदगी की यकीन दहानी है कि जिस तरह वो मरकर मुर्दों में से जी उठा, हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। ये है एश्योरेंस। हमें बेयकीनी नहीं है कि यार पता नहीं जाना है कि नहीं, हमें यकीन है कि वो जिंदा है और जो उसने कहा है वो पूरा किया है। उसने जब इस दुनिया में खिदमत कर रहा था तो जो जो उसने कहा वो पूरा हुआ। मेरी अगले दिन भाई से बात हो रही थी एक मैसेजिंग पे कि हम खता करते हैं। कौन है, प्रोवर्ब्स ने लिखा है कि कौन है जो कह सकता है कि मैं पाक हो गया हूँ? कोई भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल है कि कौन कह सकता है कि मैं पाक हूँ? बस यीशु पर ईमान लाने वाले उसकी रासबाजी की वजह से पाक गिने जाते हैं। हम जो निजात याफ्ता हैं उस रासबाज की वजह से, उसमें गुनाह नहीं था, हम में खताएं थीं,
और अब जब हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? हम मसीह के पीछे चलने के लिए जिंदा हैं। अब हम काम, ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी वही है, हमारी वही जिंदगी है। हम देखने में, सुनने में, कहने में, बोलने में खता करते हैं, और जब हम खुदावंद के आगे झुकते हैं तो वो हमें क्या करता है? माफ करता है। इसके साथ साथ पौलुस रसूल कहता है कि भाई क्या हम पर जो फजल हुआ है ताकि हम गुनाह ना करें। तो गुनाह के लिए वो, उसका मतलब है कि हम इसलिए गुनाह करें कि फजल और ज्यादा हो, कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हम माफी पाते हैं, तो क्या फजल इसलिए हुआ है कि हम और गुनाह करते जाएं ताकि फजल पर फजल होता रहे? वो कहता है नहीं, हम जो एक दफा निजात का मजा चख चुके, तो अब वो हम नहीं बल्कि वो हम में जिंदा है। मसीह यीशु हम में जिंदा है। अब हम जो ज़ाहिरी तौर पे नजर आते हैं तो हम हैं तो इंसान वही, लेकिन उसके ईमान, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम अब जिंदा नहीं। और अगर मसीह हम में जिंदा है तो फिर हमारी ज़िंदगी से जो खुदावंद यीशु ने या खुदावंद जिंदा खुदा ने हमें बनाया है, हम उसकी कारीगरी हैं। तो क्या जिन कामों को करने के लिए उसने हमें बनाया है, क्या वो हमारी ज़िंदगी से रूनुमा हो रहे हैं? सवाल ये है, क्या जब हम निजात पा चुके हैं और समझते हैं कि उसी ने हमें बनाया, उसने हमें खल किया, क्यों खल किया? ताकि उसके नए कामों को हम पाया तकमील तक पहुँचाएं। वो जो निजात बख्श काम खुदावंद जिंदा खुदा ने इस दुनिया में आकर किया, क्या हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं? तो दरख्वास्त ये है कि हम जब मसीह पर ईमान लेके आ गए हैं और उसके फजल को मानते हैं कि उसका फजल हम पर हुआ है और हमने निजात पाई है, ताकि हम गुरूर ना करें। अगर हम निजात याफ्ता हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फनकारी करके निजात पा चुके हैं, ये उसके फजल के वसीला से लिखा है ना, ताकि कोई फूले ना, कोई गुमान ना करे, कोई मगरूरी ना दिखाए कभी ए गुनाहगार है तो मैं जरा निजात याफ्ता। ऐसा नहीं, ये खुदा का फजल है जो हम पर हुआ कि हम निजात याफ्ता हैं। और क्यों निजात याफ्ता हैं? खुदावंद ने हमें बचा लिया है, हमारे गुनाहों से हमें रिहाई बख्शी है। किस लिए? क्योंकि उसने हमें बनाया था जिस काम के लिए, वो काम था निजात को आगे बढ़ाने का काम। उसके अच्छे काम, ऑफ कोर्स हम चैरिटी या धैर्य की या खैरात करते हैं, वो बेहतर काम है, लेकिन ख़ास जिस काम के लिए खुदावंद ने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है ताकि हम उन कामों को पूरा करें जो खुदावंद चाहता है कि हम पूरा करें इसे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से हम मत्ती की इंजील में देखते हैं कि आखिरी बाब में क्या है? आखिरी बाब में 28 बाब उसकी 19 और 20 आए कि जब सब कौमों को, इसको है ना, शागिर्द बनाओ, उसके जी उसके हुक्म, ये हुक्म कहा गया है, हुक्म दिया गया हमें कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, ये यकीन है ये कि वो हमारे साथ है। खुदा जो अपने वादों का सच्चा खुदा है और हमेशा हमारे साथ है। इमैनुएल, हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। हम बुखला जाते हैं जब उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं। एक्चुअली वो तो मौजूद होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं और नहीं समझते कि वो हमें देख रहा है, बल्कि हमारे साथ है। लेकिन जब हम उसको अपने साथ महसूस करते हैं तो लिखा है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या कहना है, लेकिन रूह हमें सिखाता है, वो हमारी ज़ुबान बनता है। यानी उसकी कुव्वत हम में बस जाती है और हम इस काबिल होते हैं कि हम दिलेरी के साथ उसके नाम की गवाही देने के काबिल बनते हैं।
मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हम सबको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे जिनके लिए खुदा ने हमें खल किया है। आखिरी आयत फिर मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, यानी खल खुदा ने हमें किया जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो हम सब जान गए हैं कि हम क्यों निजात याफ्ता हैं, कि खुदा ने हमें क्यों बचा लिया है, क्यों उसने सेव किया है, क्यों उसने हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी है, हमारे ईमान के वसीला से और अपने फजल के वसीला से। और फिर हमें क्यों बचा लिया कि हम मगरूर ना बने, बल्कि वो काम काज करें जिनको करने के लिए खुदा ने हमें बनाया है। हम खुद से नहीं पैदा हो गए, ऑफ कोर्स खुदा ने हमें हमारे वालिदैन के वसीला से इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम उस शायद बात को भूल गए। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को याद रखें और उन कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएँ जिनको खुदा ने करने के लिए हमें खल्क किया है। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने बड़े कामों के लिए ज़िंदा खुदा हमें इस्तेमाल करे। हम सब अपने सरों को झुकाएं और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई शमशेर जी से कि वो दुआ में रहम